Hello everyone. The topic that we are going to start today is Newton's law of motion. This is a very important topic in physics. I'll tell you why. Because every concept that we'll be using in physics, I mean to say, to solve a equation, it's important to know the dynamics of that particular object. So with the help of Newton's law, we can note down what type of mechanism that particular object is following, and we can solve it. After studying this particular topic, we'll be able to know what are the forces applied. Basically in this topic we'll be studying how to calculate force, a particular force that is being applied on an object, and due to this force calculation we'll study what all dynamics is going on. So the first very important, or I can say a very basic thing, is what is a force. I'll start with a very basic thing. What a force is. What is a force? So if I ask this question to anyone, he or she will tell me either a pull or a push is a force. Let me understand what this is. This is an object. If a boy is pulling this object, I mean to say this object is going over here with the boy, then this is a pull force. It is not a push force. And if this boy is pushing this object, it means the object is going this side, so it is a push force. Fine. So there are fundamentally four types of forces. Four types of forces are there fundamentally. The first one is gravitational force. Gravitational force. The second one is electromagnetic force. Electromagnetic force. The third one is nuclear force, and the fourth one is weak force. So what are the types of forces? The first one is gravitational force, electromagnetic force, nuclear force and weak force. Fine. So starting from this, बहुत बेसिक टॉपिक है, तो मैं ब्रीफ दे दूंगा इसके बारे में क्या होता है. सबको पता होगा, वैसे मैं ब्रीफ देता हूँ क्या होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स जो कि ग्रेविटेशन की वजह से लगा हुआ है. एक फोर्स जो कि ग्रेविटेशन के वजह से लग रहा है. फाइन. बाय वर्च्यू ऑफ मास. अब इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं. पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. पहला है फोर्स इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास. फोर्स इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास. The second one is it is always an attractive force. समझ में आया बात? मतलब अभी बताता हूँ. It is always an attractive force. Attractive force. इसका मतलब है ये दो मास है, m1 ये m2, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये रिपेल नहीं करेंगे, मतलब ये इधर नहीं जाएगा और ये इधर सेपरेशन नहीं होगा, हमेशा अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में. इट इज़ ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स. इसके बोलने के पीछे रीज़न है, मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा नीचे आता है वो ग्राउंड की तरफ, क्योंकि ग्राउंड उसको खींचता है. ये ऊपर तो नहीं जाता है ना, ये तो नीचे आता है. इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स. थर्ड वन, द फोर्स कैलकुलेटेड इज गिवन एज जी m1 m2 by r square. G m1 m2 by r square, where the value of G is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square, and G is also known as gravitational constant. G is also known as gravitational constant. नेक्स्ट, हाँ, ये जी m1 m2 में ये हो गया मासेस है, ये दिस इज द मासेस, और ये
मासेस के बीच में सेपरेशन है। ये क्या है? ये मासेस के बीच में सेपरेशन है। Fourth one is gravitational force is a weak force. What is a gravitational force? It is a weak force. Strong force नहीं है, weak force है। नॉर्मली जब भी एक बॉल गिराता है तो वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाता है, मतलब एक वीक फोर्स है, उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एजेंट का ज़रूरत पड़ रहा है, नहीं, इट्स अ वीक फोर्स। फिफ्थ वन इज इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लंबे रेंज में भी ये फोर्स एप्लीकेबल है। चाहे ऑब्जेक्ट कहीं से भी गिरा दो, बस ऊपर रहना चाहिए तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर ही लेगा। तो रेंज डजंट मैटर ओवर हेयर। नाउ द नेक्स्ट टाइप आई टोल्ड यू इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? नेक्स्ट वन आई टोल्ड यू वाज electromagnetic force. Electromagnetic force. Fine. Electromagnetic force. Properties of electromagnetic forces. One is it is caused by virtue of charge. Caused by virtue of charge. चार्ज की वजह से होता है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नाम से पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कि चार्जेस की वजह से ये हो रहा है। वहाँ पे मासेस की वजह से हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस की वजह से होगा ये फोर्स। नेक्स्ट इज लाइक चार्ज क्या करेंगे? लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और अनलाइक क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक क्या करेंगे? अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट। इसके जो फोर्स होते हैं वो हो जाएंगे, सिमिलर था उसमें Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल में, इसमें हो जाएगा Q1 Q2 और जो कांस्टेंट है यहाँ पे K होता है G की जगह बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो K का वैल्यू है तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। फिर तीसरा फोर्स था न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। वीक फोर्स मतलब जो फोर्स बहुत वीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लग रहा है, और न्यूक्लियर फोर्स का मतलब सबको पता होगा। व्हाट इज अ न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होते हैं जो न्यूक्लियंस की वजह से, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियंस, तो वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंपॉर्टेंट था हमारे सिलेबस में, जिसके प्रॉपर्टीज हमने देख लिए। अब आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से पता चल रहा होगा मतलब क्या है। कॉन्टैक्ट में रहने वाले जो फोर्स है वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके दो डिविजन्स है, मतलब दो तरह का है ये। एक ऐसे फोर्स जो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। और एक ऐसे कंपोनेंट जो कि अलोंग द सरफेस है, कॉन्टैक्ट फोर्स अलोंग द सरफेस। एक होता है क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स अलोंग द सरफेस, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यह होता है फ्रिक्शनल फोर्स। समझ आया बात? कॉन्टैक्ट फोर्स है एक फोर्स जो कॉन्टैक्ट में रहता है, और इसका दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, और एक अलोंग द सरफेस जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर समझ में आ जाएगा कैसा होता है। फाइंड द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स विद द डायरेक्शन। क्वेश्चन में फाइंड द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट
फोर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, राइट, एक सरफेस पे रखा हुआ है जहाँ पे जो सरफेस है ये इधर से 53 डिग्री है, ये 53 डिग्री है। सो आई टोल्ड यू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज नॉर्मल, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज नॉर्मल। सो अगर मैं 53 के कंपोनेंट्स बनाऊं तो मेरे पास एक कंपोनेंट जस्ट ऊपर आएगा यहाँ पे, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, n sin 53, और एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा मेरे पास जिसको मैं बोल सकता हूँ n cos 53, और जो नेट रहेगा वो रहेगा इधर, नेट रहेगा इधर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसको n1 बोलता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ ये n2 है, तो जो नेट फोर्स रहेगा वो हो जाएगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा n कैसे निकलेगा, तो ये इसका जो n का वैल्यू होता है वो होता है हमेशा mg के इक्वल, मास इनटू ग्रेविटेशन। क्यों होगा ये आगे समझेंगे अभी, क्यों mg के बराबर आता है। एक प्रॉपर्टी होता है ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया। कॉन्टैक्ट फोर्स एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक अलोंग द सरफेस जिसको फ्रिक्शन बोलता है। एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, टेंशन, या तो ये बोलता हूँ मैं ये पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स। अब बता दो कौन सा फोर्स है ये, कौन सा फोर्स है। मान लो यहाँ पे एक फिक्स दीवार है, ये फिक्स दीवार है, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है ये रोप से बंधा हुआ है, दिस इज अ रोप। तो मैं इस रोप को खींच रहा हूँ इधर किसी फोर्स को लगा के, तो रोप खींचोगे तो ये पुलिंग हो रहा है, ये रस्सी जो खींच रहा है, दिस इज बीइंग पुल्ड। सो दिस फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स। इसमें एक एक्सेप्शन केस होता है, वो एक्सेप्शन केस क्या है वो मैं बताऊँ। जैसा मैंने अभी कहा पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, मतलब ये तो अगर स्ट्रिंग है तो इसका तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं पुल करूँगा तभी है, तभी ये खींचेगा। लेकिन अगर क्या मैं इसको पुश कर सकता हूँ, क्या मैं इसको पुश कर सकता हूँ? नहीं, पुश करूँगा तो ये स्लैक हो जाएगा। स्लैक का मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें जान ही नहीं बचेगा बेसिकली। लेकिन रॉड के केस में क्या होगा, अगर कोई रॉड है, इफ देयर इज अ रॉड, आई कैन पुल ऑल्सो एंड आई कैन पुश ऑल्सो। तो ये एक्सेप्शन केस है। टेंशन रॉड में या तो पुलिंग भी हो सकता है और पुश भी हो सकता है। टेंशन इज ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। टेंशन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक in nature. Fine, tension is also electromagnetic in nature. Next type of force is spring force. Next type of force is spring force. तो स्प्रिंग सबने देखा होगा, स्प्रिंग सबने देखा है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग को अगर खींचते हैं तो स्प्रिंग को तो पुल भी कर सकते हैं हम, इट इज़ अ पुल, और स्प्रिंग को हम लोग पुश भी कर सकते हैं। मतलब जब पुल करते हैं तो स्प्रिंग एक्सपैंड होता है, दिस इज़ एन एक्सपेंशन केस। लेकिन जब पुश करते हो तो स्प्रिंग कंप्रेस होता है, स्प्रिंग कंप्रेस होता है। और जो स्प्रिंग पे जो फोर्स लगता है वो होता है K × X। ये फोर्स
दिया गया है हुक्स लॉ से, ये फोर्स दिया गया है हुक्स लॉ से, जिसमें ये जो k है, दिस इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट and x is either a compression or an expansion, compression or an expansion। और अगर इसका नेचर के बारे में बात करूँ मैं इस फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का, तो नेचर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नेचर इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, नेचर। फाइन। नेक्स्ट हेडिंग इज न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने कौन कौन से लॉस दिए थे? न्यूटन्स लॉ, द फर्स्ट लॉ, पहला है इसमें फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट or in uniform motion until a force is acted on it। मतलब a body will remain at rest or a uniform motion, or a uniform motion until a force is acted अपॉन इट। इसका मतलब क्या है? कोई बॉडी है, ये रेस्ट पे है बॉडी, ये तब तक रेस्ट पे है जब तक कोई बाहर से फोर्स आके इसको स्ट्राइक ना कर जाए। अगर स्ट्राइक करेगा तो ये बॉडी मूव करके कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा। या तो कोई बॉडी है जो ऑलरेडी मोशन में है, वो तब तक उसी मोशन में रहेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स आके उसको स्ट्राइक ना कर दे। इसका मतलब है फोर्स वेक्टर ज़ीरो, एक्सेलरेशन हो गया ज़ीरो, और वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट इस केस में। एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी रेस्ट पे है, और वेलोसिटी कांस्टेंट में अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है। नेक्स्ट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, एनी चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the force applied, is directly proportional to the force applied, force applied। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कोई भी फोर्स जो है उसको हम डिफाइन करता है चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मास और वेलोसिटी का चेंज। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम डिनोट करते हैं p से बाई dt, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अगर मैं बोलूँ d बाई dt और मोमेंटम का वैल्यू होता है mv, वेक्टर है। अब ध्यान से समझना, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो अगर मैं लिखूं इसको एफ एम वी, प्रोडक्ट रूल मैंने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में, तो एम वैसा का वैसा ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, प्लस वी वैसा का वैसा डी एम बाई डी टी। सबको पता है मास एक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, मास एक कांस्टेंट हो गया ज़ीरो। तो वी हैव एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। यहाँ से कुछ चमका दिमाग में? ये हमने पढ़ा था पहले। इट मीन्स डी वी बाई डी टी को हमने कहा था एक्सेलरेशन होता है। मतलब यहाँ से हमें मिला एफ इज इक्वल्स टू
mass into acceleration from Newton's second law. We got F is equals to mass into acceleration. I hope it's clear. अब फोर्स का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. फोर्स का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. पहला प्रॉपर्टी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. सेकंड है इसका डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग एक्सेलरेशन होता है. ऑलवेज अलोंग एक्सेलरेशन. क्यों? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में ऑब्वियस बात है फोर्स भी होगा. उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा. दूसरा इसका यूनिट. इसका जो यूनिट होता है, मैंने अभी बोला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है इसका फॉर्मूला. मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन. इसी को हम कहते हैं न्यूटन, जो कि डिनोट होता है कैपिटल एन से. इसका जो डायमेंशंस होता है, डायमेंशन MLT वाले फॉर्म में, डायमेंशन अगर फोर्स का हम निकालें तो ये होता है m, एक्सेलरेशन का होता है LT टू द पावर -2. समझ में आया बात? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg और उसका वेलोसिटी है, और इसका जो वेलोसिटी है वो गिवन है 8t i कैप -6t j कैप प्लस 20 k कैप. मुझे फाइंड करना है फोर्स फाइंड करना है. मुझे फाइंड करना है क्या फाइंड करना है? मुझे फोर्स फाइंड करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. मुझे पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास तो पता है, लेकिन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का ले तो मैं कर लूँगा dv/dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t. तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा 8i कैप -6j कैप प्लस 20 k कैप. आई होप इट्स फाइन. अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू m इंटू a. m का वैल्यू है 2 और एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 8i कैप -6j कैप प्लस 20 k कैप. तो आंसर आ जाएगा. जो तीसरा लॉ है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ. बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है और बहुत कॉमन लॉ है. ये सबको पता होगा, सबने सुना होगा ये लॉ. एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्या कहता है ये लॉ? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है जो बहुत लोग को नहीं पता होगा. वो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ. एक्शन रिएक्शन must occur on different objects. मान लो 2 लोग हैं, एक ने किसी का थप्पड़ मार दी, एक ने किसी का थप्पड़ मार दी. तो क्या वो खुद को मारेगा वापस? नहीं, वो सामने वाले को मारेगा. मतलब एक्शन रिएक्शन इज अकरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. दूसरा, एक्शन रिएक्शन हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. तीसरा, एक्शन रिएक्शन will be of same nature force. Action reaction will be of same nature force. समझ में आया बात? अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं और
कहाँ पे लग रहा है वो हम देखेंगे। मतलब एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे अगले क्लास में, और इस फ्री बॉडी डायग्राम की वजह से सॉल्व करना सीखेंगे। फिजिक्स में कैसे होता है सॉल्व, फोर्स कैसे फाइंड करता है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करता है, ये देखेंगे अगले क्लास में।